Indian prisoner Sarabjit Singh, who is languishing in Pakistan for the last 22 years, is not giving up the fight for freedom and the dream of returning home. In a fresh push to his case, Sarabjit has signed a fresh mercy petition that would be sent to Pakistani President Asif Ali Zardari. Headlines Today's got an exclusive copy of this plea. Sarabjit's lawyer met him at the Kot Lakhpat jail in Lahore, where he is imprisoned. Sarabjit's petition appeals to President Zardari to reciprocate to India's gesture of releasing Pakistani biologist Dr. Chishti earlier this year. और जरदारी जी को रिक्वेस्ट की है कि आपके साथ हमारी भारत सरकार ने भी मेरी रिहाई को लेकर आपसे बात की है। श्री एस.एम. कृष्णन जी जब पाकिस्तान आए थे तब उन्होंने भी मेरी रिहाई की बात की है, तो उम्मीद करते हैं कि जरदारी जी जरूर इस ओर ध्यान देंगे। जैसा कि अभी दोस्ती की ओर वे अपने कदम बढ़ा रहे हैं, अपने हाथ बढ़ा रहे हैं, तो लगता है कि जरूर इस पर अमल होगा। All right, Sarabjit's petition firmly puts the ball in Pakistani President Zardari's court, who's also under pressure from the Indian government after the release of Dr. Chishti from the Indian prison on humanitarian grounds. All eyes would be on Zardari's response to the petition, since the Pakistani government made a stunning U-turn in June this year. On the 26th of June this year, Pakistan announced freedom for Sarabjit, but within hours retracted it, calling it a case of mistaken identity. Pakistani President's spokesperson Surjit had said that it was Surjit and not Sarabjit who was to be released. Pakistan's heartbreaking flip-flop was believed to be under pressure from the Lashkar-e-Toiba chief, Hafiz Saeed himself. All right, Dalbir Kaur now joins us. Needs no introduction really, because she has been fighting the battle for getting Sarabjit back home. Dalbir, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमें बताएं कि अभी ये जो लेटेस्ट पिटिशन है, इसमें अलग क्या है और क्यों आप उम्मीद लगा रही हैं शायद इस पिटिशन से बात बन जाएगी? हाँ, क्योंकि एक तो हमारी हिंदुस्तान सरकार ने भी पाकिस्तान सरकार के साथ बात की, और खासकर मैं धन्यवादी हूँ एस.एम. कृष्णन जी का, जिन्होंने कि वहां जाकर सबसे बात की और अच्छा उन्हें वहां पर रिस्पांस मिला। और जैसा कि हमारी भारत सरकार के पास जब पाकिस्तान सरकार ने रिक्वेस्ट की थी चिश्ती जी की, तो तुरंत हरकत में आई हमारी सरकार और उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को माना। तो इस आधार को लेकर हम इस बात से काफी संतुष्ट हैं कि इस तरह से उनको भी चाहिए कि जैसा हिंदुस्तान ने पहल की और उन्हें अच्छा रिस्पांस दिया, उनकी बात को माना। तो इन बातों को लेकर मिलाकर लगता है कि जैसा अभी कुछ समाचार भी मिले कि आज जैसे उनका सेशन शुरू होने वाला है शीतकालीन सत्र, उसमें वे सजा को खत्म करने के लिए किसी समय भी प्रस्ताव को ला सकते हैं। तो इन बातों को मिलाकर लगता है कि जरूर अच्छा होगा, और इस बात को मानना भी चाहिए जरदारी जी से। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसा अभी मैं अजमेर शरीफ में मैं इनके मीडिया सलाहकार जी से मिली थी, शुजात हुसैन साहब थे, इमरान मसूद जी थे और इकबाल चौधरी साहब, इनसे भी मैंने यही बात कही थी कि आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। एक सेकंड आप हमारे साथ रहें। अवैश शेख भी हमारे साथ हैं, अब फोन लाइन पर लाहौर से हमसे बात कर रहे हैं। सरबजीत के लॉयर हैं शेख साहब। just take us through exactly what is the latest situation. आप optimistic हैं? Are you optimistic this time around? Yes, I am optimistic. I met day before yesterday Sarabjit Singh on the orders of the Chief Justice Lahore High Court, and I conveyed to him that he is likely to be released in the near future, and he was happy to hear this, and I am expecting today bill will be tabled in the Parliament for commuting death sentence to life. General, you can say the government want to change law to make an amendment in law. तो इस तरह से मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और ये उम्मीद जो है होनी चाहिए मेरी। शेख साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरबजीत इस बारे में कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जब वो जानते हैं कि शायद अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी उनको रिलीज करना चाहे, कुछ एलिमेंट्स हैं ऐसे पाकिस्तान में, कुछ ग्रुप्स हैं ऐसे पाकिस्तान में जो अपोज कर रहे हैं उनके रिलीज को। Yes, you are right. ये तो है। अभी कुछ स्टेटमेंट्स भी इस तरह की आई है, लेकिन मेरे ख्याल में इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। असल में द बिगर इशू इज नॉट
this government can take stand against them, because both countries increasingly desire to live in peace, and they are making good decisions, and they want to get closer and resolve their issues. And Sarabjit's case, as you know, has direct bearing on India-Pakistan relations. Absolutely. So, the government of Pakistan also desired to release Sarabjit Singh, so that they should go further and make decisions and to create a good atmosphere in those countries. So you are right, रुकावटें तो होती है और है हमारे मुल्क में, you know, there is fundamentalism and terrorism भी यहाँ पर और ऐसी जमातें भी हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि सरबजीत केस जो है मिसटेकन आइडेंटिटी थे। और ये जो अभी मैंने रिसेंटली अभी गया हूँ चीफ जस्टिस के पास, तो मैंने ये उन्हें बताया कि 22 years that Sarabjit Singh has spent in jail, that punishment was not awarded by Supreme Court. So, and secondly, and most importantly, Sarabjit's name is not there in FIR. This is a case of mistaken identity. Okay. और जो एक और बंदा है जिसके नाम है, वो पकड़ा भी गया था, उसके सारे प्रूफ आई प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट। आप बहुत ही काबिल तारीफ काम कर रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि ये जल्द से जल्द ये मामला सुलझ जाए। आपका जो पिटीशन है, आपके लेटर हेड पे जो साइन होकर जरदारी साहब के पास गया है, वो अभी हमारे पास है, हम दिखा रहे हैं यहाँ अपने व्यूअर्स को यहाँ इंडिया में। दलवीर, एक फाइनल सवाल आपसे। हमने आपकी जब स्टोरी इनिशियली हाईलाइट की थी, तो आपकी जो प्रॉब्लम थी कि सरकार आपकी बात सुन ही नहीं रही थी। इतने महीनों बाद जाके एक चीज तो शायद आप मानेंगे कि सरकारें अब कम से कम ये बात सुन रही हैं, और शायद सरबजीत के वजह से इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव फैक्टर भी आ सकता है। हम बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, और पहले जैसा नहीं था और अब सारा अच्छा हो रहा है। और मैं समझती हूँ कि मीडिया के अंदर ही इस बात का ज्यादा जब बात आती है, तभी हमारी सरकार भी हरकत में आती है। मैं तो ज्यादा श्रेय मीडिया को ही देना चाहूंगी। आप सबकी वजह से जब आवाज उठती है तो थोड़ा इनको भी पता चलता है, नहीं ये हमें करना चाहिए। इस समय वे बिल्कुल सही हरकत में है, उनकी सोच भी ठीक है। और इस सरबजीत की रिहाई को लेकर एक बात मैं जरूर इस बात को लेकर करना चाहती हूँ कि मेन बात हमारी है कि 22 साल सरबजीत ने जेल के अंदर काटे हैं। 22 साल, 21 साल से उसे ये सजा सुनाई गई, जब 91 से लेकर 21 साल उस सजा को सुनते हुए और उसके अंदर रहना और उन तमाम कठिनाइयों को सहना, 21 साल लगातार उन बातों को सहना, जो कि एक इस सजा का जो कैदी होता है उसने सब सहा, वो सब सरबजीत ने सहा। इसलिए बनता है कि इंसानियत के नाते अब उसे रिहा कर देना चाहिए। मैं उसके लंबे पीरियड को लेकर बात करती हूँ अपनी सरकार और पाकिस्तान सरकार से रिक्वेस्ट कि इतना लंबा समय उसने रोज ही बेचारा इन कठिनाइयों में से गुजरा है, तो इस बात को ध्यान में जरूर रखना चाहिए इंसानियत के नाते। और सच में हिंदुस्तान सरकार की मैं आभारी हूँ कि जिन्होंने चलो लंबा वक्त काट के से ही अब थोड़ा हरकत में आए, उन्हें पता लगा, और जो दोस्ती है दोनों देशों की, इस बात ये भी आगे बढ़ी। दलवीर जी, आप हमसे जुड़ी, हमसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही चाहेंगे कि ये पूरा मामला जल्दी से रफा दफा हो जाए, एंड वी ऑनेस्टली होप that the mercy petition is actually seriously viewed by President Zardari.